Let us see this 12th, let us see this 12th example, trigonometric examples. Find the interval in which the function given by fx equal to sine 3x, where x is between 0 and pi by 2 is increasing, decreasing. So fx is equal to sine 3x. Fx is sine 3x. So we first find f dash x. F dash x is 3 cos 3x. Now I have interval 0 comma pi by 2. So first I will check where this f dash x is 0. F dash x is 0 means 3 cos 3x is 0. 3 cos 3x is 0 means cos 3x is 0. Now cos 3x is 0. When we will get the value of cos 0? Cos 90 degree is 0. Right? Cos 90 degree is 0. Cos 3 pi by 2 is 0. Cos 5 pi by 2 is 0. Okay. But we will take few values which are present in this interval 0 to pi by 2. So when I take 3x equal to pi by 2 or 3 pi by 2, I get x as pi upon 6 or x as pi upon 2, right? So 3x belongs to 0 to 3 pi by 2. So x will belong to pi by 6 and pi by 2. So our critical point for this interval 0 to pi by 2 is 0, pi by 6, pi by 2, right? So I have to check between 0 to pi by 6 and pi by 6 to pi by 2. So between 0 to pi by 6, the value of f dash x is what? F dash x is 3 cos 3x. Now when the value of x is less than pi by 6, the value of x is less than pi by 6, the value of cos, the value of 3 cos 3x will be positive. So between this interval, between 0 to pi by 6, okay, f dash x is greater than 0. So as f dash x is greater than 0, my function is increasing between 0 to pi by 6. And between pi by 6 to pi by 2, between pi by 6 to pi by 2, if I find the value of cos 3x means I multiply this by 3, so I will get pi by 2. So this 3x is more than pi by 2. So for angle more than 90 degree, the value of cos is negative. So my function is decreasing in pi by 6 to pi by 2 interval. Although the given function is continuous at x is equal to 0 and x is equal to pi by 6, therefore by theorem 1, f is increasing in 0 to pi by 6 and decreasing in pi by 6 to pi by 2. Okay, have you understood this example? सर एक बार और समझाना। एक बार वापस से समझाएं। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा। एफ एक्स इज गिवन साइन 3x। ओके, आपका एफ एक्स साइन 3x है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया। एफ डैश एक्स का है आपका 3 इंटू कॉस 3x। ओके, आपका जो x का इंटरवल है वो क्या है, 0 टू पाई बाई 2। कॉस का ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, कॉस का ग्राफ, ग्राफ ऑफ कॉस। यहाँ पर कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन मच बेटर वे। दिस इज ग्राफ फॉर कॉस, राइट? दिस इज 0 डिग्री, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस वैल्यू इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस वैल्यू इज 2 पाई। इसके आगे भी वैल्यू होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर we have the value of x between 0 to pi by 2. Value of x is between 0 to pi by 2.
So when x is between 0 to pi by 2, cos 3x, right? For cos 3x, okay, for cos 3x, if I plot the graph, plot the graph, when x is pi by 2, okay, when x is pi by 2, this 3x will become 3 pi by 2, right? So your graph is up to 3 pi by 2 means up to this point, right? This is value of x and cos 3x. This is your function cos 3x. So cos 3x. Now when x is 90 degree, when x is 90 degree, cos 3x will be minus 3 pi by 2. What we are doing? We have this. Okay. Now आपका यहाँ पर x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो 3x की वैल्यू क्या होगी? 3x विल बी बिटवीन 0 to 3 पाई बाई 2 ना? This 3x will be between 0 to 3 pi by 2. So if I draw cos 3x, it will be from this point to this point, right? Your graph is like this. Now cos x, you are getting some value positive and some value negative. So you have to find this point, middle point. This point where your cos x value is changing from positive to negative. Okay, right? So from here, f dash x, we have to start like f dash x equal to 0. F dash x means what? 3 into cos 3x, this equal to 0. This gives you cos 3x equal to 0. This gives you 3x is equals to. अभी cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? cos की वैल्यू 0 होती है जब वैल्यू 90 डिग्री होती है. ओके, cos की वैल्यू होती है 0 जब वैल्यू 3 पाई बाई 2 होता है. So when this 3x is pi by 2 and this 3x is 3 pi by 2, the value of cos 3x is 0. ये समझा सचिन? सर अमृता को ऐड करो. हाँ हेलो सुहानी, सुहानी क्या बोल रहे हो आप? आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x. You have to check whether this function is increasing or decreasing in this interval 0 to pi by 2. Okay, so first fx is given, so we find f dash x. F dash x is 3 cos 3x. After that we equate this f dash x with 0 and this equation gives me 3 cos 3x equal to 0. यहाँ तक सबको क्लियर है? 3 cos 3x equal to 0. Yes. Now from this I have cos 3x equal to 0. Cos 3x equal to 0. That gives me the value of 3x as pi by 2 or 3 pi by 2. ये clear? The value of 3x is pi by 2 or 3 pi by 2. ये आपका 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है कि आपका जो कॉस है वो 0 कहाँ पर होता है. तो कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है, फिर उसमें आप पाई पाई डिग्री ऐड करते जाएं. 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 5 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 7 पाई बाई 2 पे 0 होगा. हम सारी वैल्यूज नहीं कंसिडर करेंगे. क्यों सारी वैल्यूज कंसिडर नहीं करेंगे? बिकॉज वी हैव टू चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0, पाई बाई 2.
ठीक है। तो आप सिर्फ उतना ही वैल्यू चेक करेंगे जहां पर आपकी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होगी। तो यहाँ पर 3x π/2 3 π/2 gives me the value of x as π/6 and π/2, बराबर। तो ये दो वैल्यूज आपको x की मिलती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, f डैश x का आंसर 0 होगा। सो ऑन नंबर लाइन we will mark this point. One is π/6, one is π/2, and we will also mark 0 because हमको 0 से π/2 तक ही चेक करना है। We have to check between 0 to π/2। आपको x का जो इंटरवल दिया है यहाँ पर 0 to π/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर when x is π/6 आपका f डैश x क्या होता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपका f डैश x जो है, आप यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में तो जब 3x की वैल्यू π/2 है, 3x की वैल्यू π/2 है और उससे कम है, तो आपको f डैश x क्या मिलता है, ग्रेटर देन 0 मिलता है। तो आपको f डैश x ग्रेटर देन 0 मिलता है। ओके, ये कैलकुलेशन से आप थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, बट अगर आपने ग्राफ बनाया है तो फ्रॉम ग्राफ यू कैन इजीली फिगर आउट that f dash x is greater than 0 when x is between 0 and π/6. So f dash x is 0 for x between 0 and π/6। यहाँ पर π/6 ओपन ब्रैकेट लिया है क्योंकि π/6 पे f dash x की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। ओके, एंड सिमिलरली f डैश x जो है, f डैश x ये लेस देन 0 होता है फॉर x बिटवीन π/6 π/2। सचिन यहाँ तक क्लियर? सचिन यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये क्लियर है जो मैंने किया अभी? हाँ क्लियर। एकदम क्लियर। ओके, सबको क्लियर ना? तो यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में यही सारी चीज़ें बताई हैं। आप आपके बुक में देखेंगे मतलब ये जो इन्होंने सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया है, इफ यू सी द सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन में इन्होंने यही इंडिकेट किया है। कहाँ गया? हाँ, ये हमारा सॉल्यूशन था। ओके, यहाँ पर इन्होंने इंडिकेट किया है, क्या इंडिकेट किया है कि f dash x is 0 gives cos 3x equal to 0, which in turn gives 3x equal to π/2 3 π/2, as x is between 0 to π/2 implies 3x is between 0 to 3 π/2, so x π/6 and π/2। तो ये x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 3x से। The point x equal to π/6 divide this interval 0 to π/2 into two disjoint interval. Now this π/6 is dividing into disjoint interval, one is 0 to π/6 and other is between π/6 and π/2. Now f dash x is greater than 0 for all x between 0 and π/6. So I will say that x greater than or equal to 0, less than or equal to π/6. 3x will be greater than or equal to 0, less than π/2 होगा। 3x means 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंड f dash x ये इंटरवल में आपका पॉजिटिव था, एंड f dash x 0 होगा फॉर x बिटवीन π/6 एंड π/2, एज x बिटवीन π/6 π/2 दिस इंप्लाइज दैट 3x इज बिटवीन π/2 एंड 3 π/2। तो आपका 3x π/2 एंड 3 π/2 के बीच में है, π/2 एंड 3 π/2 के बीच में है, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, f dash x का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। आपका 3x π/2 3 π/2 के बीच में है, दैट मीन्स आपका x जो है वो π/6 एंड π/2 के बीच में है। So when x is between π/6 and π/2, your f dash x is negative. So I will say that f is increasing in 0 to π/6 and decreasing in π/6 π/2. Clear यहाँ तक? सर हाँ
इसके लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आना चाहिए, मींस इनके वैल्यू पता होना चाहिए। एकदम आपको ग्राफ आने चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आने ही चाहिए। ग्राफ आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ। ओके, एक बार आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगी तो जाके रिवाइज कर सकते हो। एफ इज इंक्रीजिंग, ग्राफ सिंपल है, ग्राफ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। फिलहाल सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, एटलीस्ट साइन और कॉस का तो आपको आना चाहिए। ओके, as the given function is continuous at x is equals to 0 and x is equals to pi by 6, therefore by theorem 1 f is increasing in 0 to pi by 6 and decreasing in pi by 6 to pi by 2। यहाँ पर हमारा ओपन ब्रैकेट था, लेकिन क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है पाई बाई 6 पे और पाई बाई 2 पे, हम ये जो ओपन इंटरवल है इसको रिप्लेस कर देते हैं क्लोज इंटरवल से। ओके, now similar is problem number 13, find the interval in which fx equal to sin x plus cos x, x greater than 0 and less than 2 pi is increasing or decreasing। अभी ये वाला प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करके देखो। ओके, थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रॉब्लम इतने आसान नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर इन्वॉल्व होती है प्रॉब्लम आर नॉट सो सिंपल। ओके, तो ऊपर वाला करना है तो एक बार ऊपर वाला भी खुद से ट्राई कर लो, अदरवाइज डू दिस एग्जाम्पल नंबर 13। क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13 ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन भी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, खुद से ट्राई कीजिए, यहाँ पर देखिए, और नहीं समझ में आया तो बताइए मुझे। आज सुमन प्रेजेंट नहीं है, क्या हो गया सुमन को? ओम, आपको समझ में आया? हाँ सर। सर हाँ इसको बोलो। पीरियोडिक फंक्शन से भी कर सकते हैं ना? पीरियोडिक फंक्शन, हाँ। पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन से कर सकते हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हो, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की बात कर रहे हो? हाँ, पहले पीरियड निकालेंगे, फिर टी को हाफ और 2 टाइम्स लेके देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। आपने आपका आईआईटी के क्लास में पढ़ा होगा पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, और उसको यूज करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना।
सर हाँ सर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट दोनों को यूज किया है, मीन्स वो एक मिनट, देखो ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जब मैं 0,π/4 ले रहा हूँ तो इसका मतलब कि 0 आई एम इंक्लूडिंग, जैसे हम बोलते हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू π/4, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दैट मीन्स आई एम टेकिंग 0 ऑल्सो, वैल्यू ऑफ x कुड बी 0 और इट इज मोर देन 0, एंड सिर्फ लेस देन π/4 बोला है तो इट इज लेस देन π/4, π/4 इज नॉट इंक्लूडेड। So when the point is not included, we use this open bracket, and when the point is included, we use this close bracket. Okay, अभी आपका जो π/4 है और 5π/4 है, π/4 और 5π/4 पे आपको ये जो cos x minus sin x है ये क्या मिलता है, ये 0 मिलता है। Now cos x minus sin x equal to 0, that means cos x equal to sin x, that means tan x equal to 1. तो tan x 1 कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो tan x 1 आपको π/4 पे मिलता है और 5π/4 पे मिलता है, तो π/4 एंड 5π/4 ये दो पॉइंट है जहां पर आपको ये f'(x) 0 मिलता है। तो f'(x) 0 जहां पे मिलता है वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आप हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करके ही इंडिकेट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट पर आपका आंसर 0 हो जाता है, f'(x) का आंसर 0 हो जाता है। हम ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, हम इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जो π/4 और 5/4 है, 5π/4, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ में आएंगे। फिर हम एक एक कर एक एक इंटरवल में चेक करेंगे। हमारे 3 इंटरवल बन गए, एक इंटरवल है 0 से π/4, एक है π/4 से 5π/4 और एक है 5π/4 से 2π। ओके, ये 3 इंटरवल है, ये 3 इंटरवल में हम f'(x) चेक करेंगे कि इनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा। ओके, तो पहले जब आप 0 to π/4 में करेंगे, आपके लिए सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। आप अगर ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, आपके पास 0 π/4 है, 0 जिसमें इंक्लूडेड है, तो 0 इंक्लूडेड है तो आप एक काम करो, आप 0 वैल्यू ले लो और 0 वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, 1 - 0 1, तो 1 - 0 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, f'(x) ग्रेटर देन 0 है। तो f'(x) आपका ग्रेटर देन 0 होगा जब आपका इंटरवल 0 to π/4 होगा। समझ में आया धनराज? when your interval is 0 to π/4, your f'(x) is greater than 0, राइट? तो एक तो मिल गया 0 to π/4 में आपका ग्रेटर होगा। हाँ, यहाँ पर x की वो सभी वैल्यूज लेना है ना जिनपे cos x और sin x क्या मतलब वैल्यू बराबर होता है। हाँ, वो पॉइंट आपको मिल गया π/4 एंड 5π/4, क्योंकि f'(x) 0 आपको इक्वेट करना था, तो वो तो आपने ले लिया। फिर इसके बाद आप देखो आपके इंटरवल कितने बन गए, एक 0 to π/4, एक π/4 से 5π/4, एक 5π/4 से 2π। अब ये इंटरवल्स में आपको देखना है कि ये इंटरवल्स के अंदर ये cos x minus sin x आपका क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। ओके, तो 0 to π/4 में, 0 to π/4 में cos x आपका ग्रेटर होता है sin x से, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो f'(x) पॉजिटिव। फिर π/4 से 5π/4 से 5π/4, π/4 से 5π/4 मतलब क्या हो गया, ये 5π/4 मोर देन कितना हो गया, मोर देन 180 डिग्री हो गया, तो मोर देन 180 डिग्री, तो आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये इंटरवल में, ये इंटरवल में आपका यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो ये वाले इंटरवल में डेफिनेटली आपका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट आ रहा है ना, 0 पे आपका ग्राफ क्या होगा, चेंज होगा, पहले पॉजिटिव था फिर 0 हो गया, फिर अब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये π/4 से 5π/4 के बीच में आपका क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव होगा, और फिर वापस से यहाँ पर 0 वैल्यू आ गई, तो 0 के बाद में फिर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो 5π/4 और 2π के बीच में आपकी जो वैल्यू होगी ना, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ज़्यादा अगर आपको दिमाग लगाना नहीं है तो कम दिमाग में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। आपको एक वैल्यू मिल गई, उसके बाद आप बाकी वैल्यूज, पहली पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आया,
पॉजिटिव 0 से π/4 और 5π/4 से 2π में आया, तो आपका 0 से π/4 एंड 5/4 से 5π/4 से 2π, ये आपका f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप बोलोगे f इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, एंड π/4 से 5π/4 के बीच में वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो आप बोलोगे कि f इज डिक्रीजिंग इन π/4 एंड 5π/4। गॉट इट? ये इस तरह से आप बॉक्स बना के भी कर सकते हैं। मतलब आप ये इतना राम कहानी मत लिखो, ये इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मत दो। आप यहाँ पर द पॉइंट x इक्वल टू π/4 एंड x इक्वल टू 5π/4 डिवाइड दिस इंटरवल इन 3 डिसजॉइंट इंटरवल, ये आप शो करो और उसके बाद में सीधा यहाँ पर आ जाओ, इंटरवल पे आ जाओ, साइन ऑफ f डैश पे आ जाओ और फिर नेचर ऑफ फंक्शन पे आ जाओ। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा धनराज? धनराज और बाकी बच्चे सबको समझ में आया? डिफिकल्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यस आई एग्री। इसके लिए आपको 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चैप्टर में, जब 11th में था तभी भी आपको बार बार कहा था मैंने, ये वाला चैप्टर अच्छे से आप समझो, सीखो। 2-3 चैप्टर जो बहुत अच्छे से करना है वो है फंक्शन रिलेशन, सेट्स फंक्शन रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है समझने के लिए, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। परफेक्ट? एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है, आप लोग सॉल्व करिए, बाद में समझ गए। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये आपको शो करना, ये इंक्रीजिंग है। फर्स्ट प्रॉब्लम, तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू व्हाट इज गिवन, f(x) इक्वल टू 3x + 17, यू कैन राइट f(x) इक्वल टू 3x + 17. Okay, derivative, we are going to use derivative. So what we do, we find f dash x. F dash x is what? F dash x is 3. 3 is what? It is greater than 0. So therefore what I will say, that I will say that f(x) is increasing in r. आपका रियल नंबर में f(x) क्या है? इंक्रीजिंग है। डन? सिंपल पहला प्रॉब्लम, किसी को डाउट? सर रुको अभी। हाँ सर सर हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सर साइन एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बता दो ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बता दूं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैं सिर्फ साइन और कॉस का ग्राफ बताऊंगा, क्योंकि साइन और कॉस का ग्राफ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। साइन एंड कॉस के ग्राफ आप देख लो। ओके, साइन का जो ग्राफ है, साइन, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट पता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका साइन ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस एंड इट कंटिन्यूज लाइक दिस। यहाँ पर ये 0 वैल्यू है, ये पाई वैल्यू है और ये 2π वैल्यू है, इसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 90 डिग्री, दैट इज π/2, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 3π/2 होगी, 3π/2। ओके, सो इसके आगे इसी तरह से आप 90 डिग्री ऐड करते जाओ एंड आपको आगे मिलता जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। तो अगेन ग्राफ का शेप सेम है, यहाँ पर ये 0 है, ये वैल्यू π/2 है, ये वैल्यू आपकी पाई, दिस वैल्यू इज 3π/2, दिस वैल्यू इज
3 pi plus pi upon 2. So what you will get? You will get 2 pi. This is graph for cos x. समझ में आया धनराज? धनराज, यस सर। ये sin x और cos x का ग्राफ है, बस इतना ही है। ग्राफ ऑफ sin x एंड cos x। आपको फिजिक्स में भी ये ग्राफ वगैरह यूज हुए होंगे। सर पहला फिर से बता। हाँ, पहला वाला ये ये पहला क्वेश्चन है। एफ एक्स इज 3x प्लस 17, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर आई विल से दैट एफ इज इंक्रीजिंग इन आर, increasing on R, not in R, increasing on. This is increasing on R. Shall we move to second problem? Show that the function fx equal to e power 2x is increasing on R. You have to show that this e power 2x is increasing on R. I answer second ka. Second question is, your second question is, we will say fx equal to e power 2x, fx equal to e power 2x. Then what is f dash x? Dhanraj, what is f dash x? fx is e power 2x. Then f dash x? 2 into e power 2x। ओके, वेरी गुड। अच्छा, क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी? इज दिस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0? हाँ सर। क्योंकि आपका x का वैल्यू निगेटिव होगा तो भी ग्रेटर देन 0 होगा क्या? पावर है ना सर। ओके, वेरी गुड। सो f dash x 2 into e power 2x. Now e, value of e is constant 2.7 something. So it's a power, whether it is positive or negative, I will get a positive value, so it is greater than 0. So therefore I will say that fx जो है, fx is what? fx is increasing. fx is increasing on रियल नंबर r. सिंपल। सुहानी, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? सुहानी, हाँ सर। आ रहा है ना समझ में? हाँ हाँ, ओके फाइन, ठीक सर, है। अभी वहां पर ना ये 2x लिखा हुआ है, अगर वहाँ 3x लिखा होता तो नेगेटिव हो जाता ना। अब क्यों निगेटिव हो जाता? 3x लिखा होता तो 3 इंटू ई पावर 3x। अब e का पावर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमेशा आपको इसका आंसर फंक्शन का तो पॉजिटिव ही आएगा ना। अगर मैं बोलूँ 2 पावर -4, तो 2 पावर -4 पॉजिटिव है या निगेटिव? 2 पावर -4 पॉजिटिव है या निगेटिव? सुहानी,
2 power minus 4 is positive or negative? सुहानी आवाज नहीं आ रही है? सुहानी है? हाँ सुहानी, सुहानी आपकी आवाज नहीं आ रही है. You can comment in chat box. 2 power minus 4 is positive or negative? अच्छा, फाइन. अंकिता तुम बताओ, 2 power minus 4 is positive or negative? अंकिता? Yes, sir. हाँ, 2 power minus 4 is positive or negative? अंकिता? So 2 power minus 4 ना? हाँ, So negative. 2 power minus 4 negative. नहीं पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि पावर नेगेटिव पर इवन नंबर में है ना. अच्छा, 2 power minus 5. 2 power minus 5 is positive or negative? 2 power minus 5 is positive or negative? बड़ा टफ क्वेश्चन है, आईआईटी वाला क्वेश्चन है ऐसा लगता है. 2 power minus 5 is positive or negative? नेगेटिव सर. नेगेटिव? कौन बोला ये? सचिन? सर पॉजिटिव है. पॉजिटिव होगा ना. अरे यार आप पॉजिटिव लोग ही मतलब आएगा. 12वीं में आ गए तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. 12वीं में आ गए, हमको 7वीं 8वीं वापस से पढ़ना पड़ेगा. 2 पावर क्या है? 2 पावर माइनस 5. तो 2 पावर माइनस 5 यू कैन राइट दिस एज 1 अपॉन 2 पावर 5. कैसा नेगेटिव हो गया? 0.something. हाँ, हाउ इट इज नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव. यस. चलो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था. नाउ, so e power, whether it is positive negative, you are always going to get positive answer. Therefore I said that f dash x is greater than 0, therefore fx is increasing on r. Right and simple. Third question है, show that the function given by fx equal to sin x. अभी ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करता हूँ. fx equal to sin x आपको शो करना, इट इज इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 में ये fx equal to sin x इंक्रीजिंग है, ये आपको शो करना है. तो आपका fx, यहाँ पर fx की वैल्यू है fx इक्वल टू sin x. तो आपका f डैश x क्या होगा? f डैश x आपका होगा cos x. अभी आपका f डैश x इक्वल टू 0 क्या होगा? f डैश x इक्वल टू 0. दिस implies that your cos x equal to 0. This implies that x equal to, now cos x 0, so x is what? Pi by 2. 2 और पाई अपॉन 2 और कोई वैल्यू होगी जहाँ पे 0 आता है? 3 पाई अपॉन 3 2. pi by 2. और कुछ आ सकता है क्या? पाई पाई अपॉन 2 भी आता है. ओके, राइट. लेकिन हमारा इंटरवल क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट ना, हमको किस इंटरवल में देखना है. सो आपका 0 to पाई तक है, मैक्सिमम 0 से पाई तक है. सो फॉर इंटरवल 0 to पाई, ये आपका इंटरवल है. ये इस तरह से तो और भी वैल्यूज आएगी. इंटरवल पाई एफ डैश एक्स, ये 0 हो गया फॉर x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2. तो ये जो पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 है, ये आपका जो 0 to पाई है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है? आपका जो 0 और पाई है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है? तो यहाँ पर ये वैल्यू पाई बाई 2 आ गई और यहाँ पर ये वैल्यू 3 पाई बाई 2 आ गई.
राइट? ओके, सही किया क्या मैंने? मुझे ऐसा लगता है सही किया. So I will say that pi by 2 and 3 pi by 2 divides interval 0 to pi in 3. राजेश सर, हाँ, हमको तो सिर्फ 0 to π/2 ही पूछा था ना. 0 to pi by 2. हाँ, लेकिन आप पूरा प्रॉब्लम देखोगे ना, पूरा प्रॉब्लम, तो आप देखोगे यहाँ पर 0 to pi by 2 इंक्रीजिंग शो करना है, pi by 2 से पाई डिक्रीजिंग शो करना है, और 0 से पाई नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग शो करना है. ओके, तो 0 से पाई बाई 2. अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने गलती की है, मेरा 3 पाई बाई 2 कैसे आ गया? cos x, x 90 डिग्री पे 0 है. अच्छा, 3 पाई बाई 2 तो इज मोर देन पाई ना, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू लेंगे हम. ओके, हियर वी विल टेक ओनली दिस वैल्यू. ये खाली पाई बाई 2 कंसिडर करेंगे, और फिर ये जो पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 आपका डिवाइड कर देता है दो पार्ट में. तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपका जो बुक में एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वो एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं. स्टेटमेंट कैसा? तो इफ यू सी एग्जाम्पल, ओके, इसे ड्रॉप कर देते हैं, गलत किया है हमने. एग्जाम्पल में इन्होंने स्टेटमेंट कैसा लिया है? इफ यू सी द स्टेटमेंट, ओके, थोड़ा ऊपर जाते हैं. एज अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये नहीं, यहाँ पर f dash x is 0 gives this. The point x equal to pi by 6 divide interval into two disjoint interval. We write this x equal to, so हमारे केस में क्या होगा? हमारे केस में होगा, कहाँ गया प्रॉब्लम? यहाँ पर है. हमारे केस में होगा x equal to pi by 2. So here we will write x equal to pi by 2 divides interval 0 to pi in two disjoint intervals. टू डिसजॉइंट इंटरवल्स, क्या दो डिसजॉइंट इंटरवल है? एक है 0 से पाई अपॉन 2 एंड दूसरा है दूसरा ओपन ब्रैकेट लेंगे हम, वी से दैट पाई अपॉन 2 कॉमा पाई. ये इसको क्लोज, ये इसको ओपन, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक नंबर लाइन शो करेंगे. नंबर लाइन पे यहाँ पर हम 0 इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर हम पाई बाई 2 इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर हम पाई इंडिकेट करेंगे. फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? हम एक ऐसा टेबल बना देंगे, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड नेचर ऑफ फंक्शन. यहाँ पर एक टेबल बना देंगे, एक पार्ट ऑफ आपका इंटरवल. हाँ सर, दोनों इंटरवल में π/2 के साथ ओपन ब्रैकेट ही लगाया, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है क्या? हाँ, क्योंकि पाई बाई 2 पे आपका एफ डैश एक्स 0 होता है, आपको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 चाहिए ना. यस आपको एफ डैश का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 चाहिए ना, बराबर. इसके लिए हम ओपन ब्रैकेट ले रहे हैं पाई बाई 2 के पास में. एंड नेचर ऑफ फंक्शन, थर्ड कॉलम इज योर नेचर ऑफ फंक्शन. थर्ड इज नेचर of function. Okay, so interval, your first interval is 0 to pi by 2. Now this 0 to pi by 2, in this interval 0 to pi by 2,
आपका फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन एफ डैश कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स, माइंड में आपके ग्राफ भी काम करना चाहिए। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो बिटवीन 0 to π/2 ये एफ डैश एक्स का साइन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर नेचर ऑफ फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग। बराबर। और यहाँ पर π/2 से पाई, इसके अंदर यहाँ पर ये π/2 वैल्यू है और ये पाई वैल्यू है। तो π/2 से पाई में इसका साइन क्या है? निगेटिव। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग। और फिर मेरा 0 से पाई अगर होगा तो इसमें साइन क्या होगा? इसमें साइन हम डैश देते हैं, नॉट डिफाइंड बोल देंगे, है ना? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यही हमको बताना था। क्या है क्वेश्चन? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। So in this interval it is neither increasing nor decreasing. बराबर, समझा? आपको एकदम प्रॉपर एग्जांपल्स दिए इन्होंने, प्रॉपर मेथड भी दिया हुआ है कैसे आप लिखना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है। राइट, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ समझ में आया कि हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। आपको सॉल्यूशन देखना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से हमने सॉल्व करना चालू किया। ओके, राइटिंग बहुत खराब है क्योंकि थोड़ा पैड पे हमको लिखने को जमता नहीं है। बैक ऑन, बट यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक। You can solve yourself also this problem. लिख रहे हैं आप लोग ये प्रॉब्लम? If you finish this problem, let me know. खत्म हो जाए आपका प्रॉब्लम तो बताइए। Shall I discuss next problem? Class, I think you have done this problem.
I move to next problem. नो सर, नो सर. No? Okay. सर थोड़ा सा ऊपर करो ना. हाँ. यस सर. ओके फाइन. नीचे इस तरह से कॉलम बना के आप लोग शो कर दो. दैट इज बेटर. कॉलम बना के करो. नाउ फोर्थ प्रॉब्लम. फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन given by fx equal to 2x square minus 3x is increasing decreasing. Find the interval in which function given by 2x cube minus 3x square minus 30x plus 7 is increasing decreasing. Find the interval in which the following functions are strictly increasing or decreasing. Okay. So ये जो प्रॉब्लम फिफ्थ है, प्रॉब्लम फिफ्थ आप लोग ट्राई करके. वैसे भी 3:18 हो गए, तो एज ए होमवर्क ले लीजिए दिस प्रॉब्लम नंबर 5. यू ट्राई. राइट. ओके. So anyone have any doubt or question they can ask. Otherwise we will stop this lecture here. And आज एब्सेंट कौन है? मुझे लगता है सिर्फ सुमन एब्सेंट है. और कोई एब्सेंट है क्या? अंकुश is present. Sachin is present. Swani is present. Aditya is also absent. Right? आदित्य. सर आदित्य ने मैसेज डाला है कि 5 मिनट पहले डाला था. अच्छा, आदित्य ने मैसेज डाला है. सर बैटरी डाउन. सर मैं कुछ ये टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ. वो बता रहे रीसेंट ये टैप टू रीसेंट और डिलीट फेल टू सेंड बता रहे सर. और ध्रुव करके लड़का था. ध्रुव है ना सर अभी भी? हाँ ध्रुव है. ध्रुव. यस, ध्रुव इज देयर. ओके फाइन. तो कोई दिक्कत है आपको? डिफिकल्टी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने में? नहीं सर ठीक है सर. ये तो ठीक है. ओके. डेरिवेटिव इजी था या ये चैप्टर इजी है? सर ये ठीक लग रहा है फिलहाल तो. वो तो डेरिवेटिव तो सर एकदम मतलब डेरिवेटिव का प्रैक्टिस करो. फिर डेरिवेटिव का अच्छे से प्रैक्टिस करो. ओके. ठीक है. वो डिफरेंशिएशन का ना? हाँ डिफरेंशिएशन, वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन का. हाँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन. ठीक है इसका सर. प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पर सब आप डेरिवेटिव ही फाइंड आउट कर रहे हो. यू आर हाँ फाइंडिंग डेरिवेटिव. बट ये है कि उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव नहीं है, बट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना. यू आर फाइंडिंग डेरिवेटिव. So you हाँ should know सर. derivative, how to find derivative. Okay. डेरिवेटिव आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 11th में नहीं किया जिसने, वो अब थोड़ा पछता रहा होगा कि क्यों नहीं किया. हाँ ग्राफ समझ सर. में नहीं आएगा, ये फंक्शन समझ चैप्टर में नहीं आएगा, ये नहीं वो नहीं. तो ऐसे ही आप ये वाला चैप्टर अगर नहीं करोगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी तो ठीक है एक बार के लिए ओके, बट डिफरेंशिएशन नहीं करोगे तो आपको आगे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम है. सर ये चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है? ये चैप्टर में चलो देख लेते हैं कितने हैं. मेरे ख्याल से इसमें भी काफी एक्सरसाइजेज हैं. अरे एक्सरसाइज यार 6.3, सर अब अभी नेक्स्ट चैप्टर कोई ऐसा चैप्टर चुनना जिसमें सर कम. 6.4, 6.4, 6.4. कितना बड़ा एक्सरसाइज है भाई ये. 6.5, 5 एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर. ठीक है सर कर लेंगे सर. नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा ठीक है. कम एक्सरसाइज वाला ढूंढना ना. करते हैं अपन लोग कम एक्सरसाइज वाला. नेक्स्ट चैप्टर क्या कोई ऐसा बोला? टारगेट करते तो कम एक्सरसाइज वाला करते.
क्या क्या कोई और टारगेट? मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो करेंगे वो कम कम एक्सरसाइज वाला करते सर। तो मैथ्स में मेरे को ढूंढ के बता देना कौन सा एक्सरसाइज कम वाला ओके सर। है। ठीक है, ओके, चलो, हाँ ओके, बाय बाय एवरीवन। चलो बाय सर, थैंक यू सर। या वेलकम।